Hello, imbibers. A very good afternoon to all of you children. Welcome to today's session, another informative session for you children. Today we're going to discuss about how the plants communicate. Yes, जब plants living हो सकते हैं, जब plants respiration कर सकते हैं, जब plant digestion कर सकते हैं, of course assimilation कर सकते हैं, excretion भी कर सकते हैं, तो plants communicate क्यों नहीं कर सकते? Yes, in today's session we going to discuss about कि plants communicate कैसे करते हैं, how these plants communicate with each other and how these plants are communicating with the environment in detail. And before we start, let me introduce you to myself once again. I am Anam Khan. I'll be your biology expert and we're going to discuss all the amazing and interesting topics related to biology just like we have been discussing. So children, another session, another informative session for you, but I would like to tell you children, soon we're going to start your batch. Yes, sooner, and we're going to basically have a full-fledged batch for you where you can attend sessions for the biology as well as the other subjects, social sciences, physics, chemistry, maths, and everything would be there on the Imbibe platform. I would like you to please go and download the Imbibe platform, of course, from the App Store to register for the upcoming classes. Yes, so children, we're going to basically have lots of things for you in future. Yes, just wait for a couple of days more and then we have going to start a full-fledged batch for you. We're going to discuss lots and lots of things about the biology just like we have been discussing. So today we're going to basically discuss about how the plants communicate. Plants भाई तुम्हारे जैसे बातें कैसे करते हैं? So we're going to discuss that. So let's start our session children. The very first thing, a quick introduction about myself जो मैं तुम लोगों को हमेशा देती हूँ. Yes, my name is Anam Khan. I have an experience of 7+ years, mentored more than 12,000 students and I am qualified in MSc Plant Sciences, dealing with the plant bounty, specialist in botany. Yes, so yes, क्योंकि हम आज बात भी plants की कर रहे हैं तो मैं बता भी दूं कि I have a master's in plant biology. So yes, a quick introduction about myself so that you know that what your educator is. So yes, moving on to the next thing, the very first thing today we're going to discuss about, okay, there are 22, some issue I guess. Okay. So children, talking about how the plants communicate, let's basically discuss about, there are basically 22 language, but there is a different way the plants communicate. There's a different way how animals communicate and there's always a different way जैसे हम communicate करते हैं. अगर सिर्फ मैं बात करूं what is communication, तो मतलब है कि अपनी बातों का एक दूसरे से basically अपने आप बातों को express करना, अपने thoughts को express करना, whatever you require, the ideas, thoughts, information जो भी है, वो basically share करना individual to individual और individual to groups. Yes, every particular person in your life, चाहे वो तुम्हारे friends हो, तुम्हारे वो family हो, parents हो, teachers हो, ठीक है, कोई भी हो XYZ person, उनसे हर तरीके का हर किसी से हर particular person से you share a different kind of information, you different kind of a thoughts, different kind of communications basically on a daily basis. सबसे अलग अलग तरीके से बात होती है, सबसे अलग अलग तरीके की requirements है, सबसे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर होती है और कम्युनिकेट होती है. सो यानी कि कम्युनिकेशन एक इज जस्ट अ रेफर्ड टू एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन, ताकि हम अपनी बातें बता सकें, अपने थॉट्स शेयर करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकें और सामने वाला हमें अपनी चीज़ें बता सके. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो इफ आई टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन कैन बी बेसिकली थ्रू अ लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस. तुम लोग इतने वी लिव इन दिस सच अ ब्यूटिफुल कंट्री कॉल्ड India, which have so many languages, so many different languages as being spoken all throughout our country. So सबके methods, सबकी language different है. Somebody speak Marathi, somebody speak Kannada, somebody speak Telugu, Tamil, Hindi, XYZ. These are Malayalam. Yes, of course. So children, these are all the languages, these are all the way of communications between the people, between the respective people. फिर symbols के through भी communicate करते हैं. Of course, तुम लोगों को पता है ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे जाते हो तो वहां पे तो ऐसा तो नहीं है तुम लोगों को बताता है अरे ग्रीन हो गई अब आगे जाओ, रेड हो गई रुक जाओ. ओके ऐसा नहीं है. तो वहां पर हम सिग्नल्स वगैरह यूज करते हैं, सिग्नल्स वगैरह या फिर आई वुड से सिंबल्स वगैरह हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू मैसेजेस, थ्रू फोन्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू फैक्स एंड टेलीग्राम. पहले होते थे लेटर्स. ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन ओनली. ठीक है, अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स जो हैं बेसिकली वो कम्युनिकेट करती हैं थ्रू यूजिंग वोकलाइजेशन. Yes, they use vocalization to communicate with each other, such as
birds are singing, तुम लोग को पता है सुबह सुबह birds they start chirping, they start singing, lions जो हैं वो roar करते हैं, wolves जो हैं वो howl करते हैं, dolphins जो हैं वो sound करती हैं click click और whistles etc. सारे एनिमल्स का अपना बिहेवियर है, अपनी लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट विद देयर कम्युनिटी, कम्युनिकेट विद देयर नेचर, ठीक है। चाहे वो लायन हो, चाहे छोटा सा लायन हो, चाहे भाई इनफैक्ट छोटा सा मस्कीटो भी तुम्हारे कान पे आके सुरीली आवाजें निकालता है, दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट ही इज देयर एंड यू नीड टू बेसिकली बी केयरफुल बिकॉज अदरवाइज गोइंग टू बाइट यू। यस, दैट्स जोक्स अपार्ट, बट यस as you know कि birds जो हैं they start singing, lions they roar, the wolves they howl, and the dolphin sounds have a click click and whistle. So these are all the methods of communication. Plants do communicate. अब भाई plants के बारे में है पूरा सेशन, तो plants के बारे में भी बात करते हैं। plants जो हैं दूसरे plants से communicate करते हैं, और plants जो हैं animal से भी communicate करते हैं, plants जो हैं even people से भी communicate करते हैं। तो plants जो हैं भाई काफ़ी आई वुड से पहली बार सुन रहे हो तुम लोग अपनी लाइफ में कि मैम कह रही हैं प्लांट्स जो हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं। हमने तो मैम कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। वी गोइंग टू बेसिकली टेल यू हाउ डू दे कम्युनिकेट विद यू, विद द नेचर, विद द एनवायरनमेंट, विद द एनिमल्स एंड बिटवीन देम self. So yes, this is a quick introduction about what do you mean by communication, how animals communicate, and how exactly plants used to communicate with the different plants, with you, with the different animals also. Moving forward, next we have, तो भाई डार्विन की जो रिसर्च है उसके बेसिस पे जो है प्लांट बिहेवियर को हमने स्टडी किया, नॉट हमने मतलब ऑफ कोर्स डार्विन ने, उन्होंने बेसिकली जब रिसर्च की और उन्होंने जब स्टडी किया, चार्ल्स डार्विन जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है। उन्होंने जब रिसर्च करी प्लांट के बिहेवियर पे, तब उन्होंने सबसे पहले क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो हैं उनका ब्रेन जो है, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एट देयर रूट टिप्स। उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो टिप्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसा है, ब्रेन टाइप। जो रूट्स टिप्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसा है, ब्रेन टाइप। एंड वो कैसे स्पीक करते हैं, दे बेसिकली स्पीक विद अदर प्लांट्स यूजिंग केमिकल्स एंड सर्टेन साउंड्स। उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है दूसरे प्लांट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे प्लांट से केमिकल का यूज करके और साउंड का यूज करके दे यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है। रूट टिप जो है वो सेंस और रिस्पॉन्ड करती हैं स्टिमुलस को। व्हाट इज स्टिमुलस, तुम लोगों को पता है, स्टिमुलस इज द एक्सटर्नली जब हम बेसिकली कोई भी इनिशिएटिव देते हैं, बल्कि कोई भी बेसिकली स्टिमुलस एक इनिशिएटिव, एक कैसे बोलते हैं ना, एक स्टार्टिंग बेसिकली, तो बेसिकली स्पॉन करते हैं स्टिमुलस को, जो तुम इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे नेचुरल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, जैसे लाइट की तरफ प्लांट का बढ़ना, ग्रेविटी की तरफ रूट का बढ़ना, केमिकल की वजह से मूवमेंट होना और साउंड की वजह से मूवमेंट होना। ये सारी की सारी जो हैं ये सोर्सेस हैं जिनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। सो ये बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अ स्टिमुलस। द लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स एंड साउंड, ऑल ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली एक्टिंग एज अ stimulus. The root tip transmits message that function as signals to activate processes such as growth, directional movement, and the production and release of special gases. अगर हम बात करें रूट टिप की, तो रूट टिप जो है वो क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है मैसेजेस that function as signals to activate processes. जो रूट है वो ट्रांसमिट करती है मैसेजेस that function as signals to activate processes such as growth, directional movement and the production and release of special gases. तो बेसिकली जो है रूट को क्या बोला था डार्विन ने, रूट को ही, रूट की टिप्स को ही क्या बोला था, ब्रेन बोला था। और उन्होंने बोला कि रूट्स जो ही है वो बेसिकली सिग्नल भेजती है, एक्टिवेट करती है प्रोसेसेस को। जैसे कैसे प्रोसेसेस को एक्टिवेट करती है, ग्रोथ को एक्टिवेट करती है, डायरेक्शनल मूवमेंट को एक्टिवेट करती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, रिलीज ऑफ स्पेशल गैसेस को भी एक्टिवेट क्या करती है, तुम्हारी रूट टिप ही एक्टिवेट करती है। तो ये बात किसने बोली, ये बात तुम्हारी बोली चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर, ओके, यस और नो, इज इट क्लियर? एक बार पढ़ लो इसे बहुत अच्छे से, चार्ल्स डार्विन ने एग्जैक्टली कहा क्या था।
यस। फिर बात करते हैं एक छोटे से नोट की जो नीचे दे रखा है, डार्विन ने जो कहा रूट की ब्रेन हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग बट मॉडर्न रिसर्च शोज दैट प्लांट्स कैन कम्युनिकेट। फिर भाई डार्विन ने अपनी थ्योरी करी, डार्विन ने अपना रिसर्च किया, डार्विन ने पुट फॉरवर्ड कर दिया सारी की सारी, भाई वो रिसर्चर थे, रिसर्चर्स अपनी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड करते हैं, बट इवेंचुअली जो उनकी रूट ब्रेन हाइपोथेसिस थी कि रूट की टिप्स जो है वो ब्रेन का काम करती हैं, सून दैट हाइपोथेसिस वाज बेसिकली रिजेक्टेड, ठीक है, और वॉज प्रूव टू बी रॉन्ग। बट ये बात सच है कि प्लांट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, द प्लांट्स डू कम्युनिकेट, बट जिस तरह से डार्विन ने एक्सप्लेन किया दैट्स नॉट द करेक्ट मेथड कि भाई प्लांट्स जो है वो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन प्लांट्स हैव अ ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एट देयर, कहां पर रहता है उनका ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर? अभी अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। यस, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन प्लांट्स हैव अ ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एट देयर, यस, कहां पर होता है उनका ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर? स्टेम टिप्स पे, रूट टिप्स पे, लीफ टिप्स पे, फ्लावर टिप्स पे, कहां पे शो करते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर? यस, क्विकली खुद से सोचो। सिंपल सा आंसर है, अभी अभी डिस्कस किया है हमने, रूट टिप्स। रूट टिप्स इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स डार्विन ने कहा था जो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट में वो कैसा है? रूट टिप्स में। नेक्स्ट, केमिकल सिग्नल। अब हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है भाई कम्युनिकेट तो करते हैं, ठीक है, ये बात तो सच है कि प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं, भले ही वैसे ना करते हो जैसे चार्ल्स डार्विन ने बोला था, पर प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह से करते हैं? बात करते हैं केमिकल सिग्नल्स के बारे में। प्लांट रिलीज केमिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट कैन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सर्व्स एज अ सिग्नल टू द अदर प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं, वो रिलीज करते हैं। वॉलेटाइल समझते हो ना तुम लोग? जो इजीली, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली कैसा फॉर्म चेंज कर लेता है, समथिंग विच इज वॉलेटाइल। यस, है ना, एकदम से बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली वॉलेटाइल क्या है? इजीली बेसिकली स्पार्क जनरेट कर ले, ठीक है। तो वॉलेटाइल कंपाउंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली केमिकल सिक्रीट करते हैं जो बेसिकली सर्व करते हैं एज अ सिग्नल टू दी अदर plants. किस तरह का? they serve as a signal to the other plants. These chemicals can indicate the presence of predator or herbivore and trigger the defensive responses in the nearby plant. तो मतलब ये केमिकल, ये ही वॉलेटाइल केमिकल जो हम कह रहे हैं कि प्लांट सिक्रीट करते हैं, ये क्या करते हैं? ये अलर्ट कर देते हैं प्लांट को। किस बेसिस पे? ये अलर्ट कर देते हैं प्लांट को कि भैया देयर इज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर पता है तुम लोगों को, प्लांट के लिए तो वो क्या है? प्रेडेटर ही है ना, उनको मारने आए। यस और नो? तो भाई हर्बीवोर है आसपास, ठीक है, तो भाई क्या करते हैं? यही वॉलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट देते हैं कि केमिकल्स जो हैं बेसिकली क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं, सिग्नल करते हैं कि भाई देयर इज अ डेंजर एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो प्लांट्स क्या करता है? अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेता है, ट्रिगर कर देता है, और जो नियर बाय प्लांट्स हैं उनको भी डिफेंसेस रिस्पॉन्सेज पहुंच जाते हैं। सो दिस इज हाउ दीज सिग्नल्स बेसिकली ऑपरेट। ओके, अगर VOCs के बारे में बात करें, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल हैं जो रिलीज्ड हैं एज गैसेस दैट रेडिली डिफ्यूज थ्रू द एयर अवे फ्रॉम द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस देम। यस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, रिलीज करते हैं गैसेस जो रेडिली क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं, जो रेडिली डिफ्यूज हो सकती हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं एयर में, अवे फ्रॉम द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस देम। तो भाई वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं, इजीली डिफ्यूजन हो गए और इसी इजीली जो है वो सिग्नल पहुंच गया एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर। यस, this is how the plants you communicate using the VOCs. Example जो है ऐसे volatile substances का, वो है मिथाइल जेस्मोनेट, आइसोप्रीन, ग्रीन लीफ volatiles,
टर्पीन्स। तो ये सारे क्या हैं, VOCs हैं, जो तुम्हारे सर्टेन केमिकल्स हैं जो तुम्हारा प्लांट सिक्रीट करता है ताकि वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर सके, ताकि वो इजीली दूसरे प्लांट्स को बता सके कि देयर इज अ प्रेडेटर अराउंड, देयर इज अ हर्बीवोर अराउंड, तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये VOCs जो हैं, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या कंपाउंड्स हैं, ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं और इजीली ये इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देते हैं। तो ये दिस इज अबाउट द केमिकल सिग्नल्स। क्लियर? Next what we have, next we have talking about this VOC which is methyl jasmonate. Yes, let's talk about the methyl jasmonate जो भी एक volatile organic substance है। अब it is produced, this kind of a volatile substance, organic compound is released जब plant जो है वो under attack होता है। मतलब जब प्लांट को कोई प्रेडेटर अटैक करने वाला होता है तो मिथाइल जैस्मोनेट जो है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और वो प्लांट को क्या करेगा, अलर्ट कर देगा ये दैट यू गोइंग टू बी बेसिकली अटैक्ड। यस, and it is formed inside a wounded plant and released, for example when a plant and animal tries to eat it। ठीक है, देखो the bug is coming, the bugs are coming, देखो exactly, thanks for warning me। ठीक है, तो भाई आसपास के जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मिथाइल जैस्मोनेट है ये वो ज्यादा सिक्रीट करता है जो प्लांट्स वुंडेड होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स हल्का सा भी वुंडेड हो गए, जिन्हें प्रेडेटर ने अटैक किया होगा, उनमें ये ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा और उनके सिक्रीशन से जब ये डिफ्यूजन करेगा एयर में तो आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको भी अवेयर कर देगा कि भाई देयर इज अ प्रेडेटर अराउंड, देयर इज एन एनिमल विच इज गोइंग टू ट्राई टू ईट यू। ठीक है, मिथाइल जैस्मोनेट जो है वो बेसिकली मूव करता है थ्रू द एयर एंड टू द नॉन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट्स and to the neighboring plants where it activates defense mechanism। तो मिथाइल जैस्मोनेट जो है वो बेसिकली डिफ्यूज कर जाता है थ्रू द एयर और क्या करता है, टू द नॉन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट, और उधर भी कम्युनिकेट करता है, जो प्लांट्स के पार्ट डैमेज नहीं हुए हैं उनको भी कम्युनिकेशन पहुंच जाता है और नेबरिंग प्लांट्स को भी ये कम्युनिकेशन पहुंच जाता है और ये एक्टिवेट कर देता है डिफेंस मैकेनिज्म। सिंपल सी प्लांट है, प्लांट अपना डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बस कुछ गन वन लेके डिफेंस मैकेनिज्म जैसे आर्मी कर ली, उनके अपने सिक्रीशंस होंगे जिससे वो हर्बीवोर को बेसिकली अपने आप को खाने से जो है वो बेसिकली अवॉइड करवा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द मिथाइल जैस्मोनेट। क्लियर? Moving forward, next we have a question. Connect the bubble which are examples of volatile organic compounds. Quickly. What are volatile organic compounds? Yes, quickly, what's the answer? What are the volatile organic compounds? Yes, the correct answer would be methyl जैस्मोनेट, टर्पीन्स, ठीक है, sorry, terpenes and isoprenes are also methyl volatile. Next, what are the functions of फंक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो फंक्शन क्या है ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? ठीक है, ध्यान से देखो, ये तुम लोग देख लो। यूज एज सिग्नल बाय फंगल सिम्बायोंट, यूज एज अ क्यू ऑफ पैरासाइट। ठीक है, अब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं? इट ऑल्टर थ्रेड्स एंड द नेबरिंग प्लांट्स respond to these signals by preparing to defend themselves even before they are attacked। Yes, ये क्या करते हैं, नेबरिंग प्लांट को सिग्नल भेजते हैं
नेबरिंग प्लांट्स को सिग्नल भेजते हैं ताकि बराबर वाला प्लांट्स जो है वो बेसिकली कैसा हो जाए, प्रिपेयर हो जाए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इससे पहले वो अटैक हो। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस यही करते हैं, ये बेसिकली सिग्नल भेजते हैं अपने नेबरिंग प्लांट्स को कि भाई तुम पर अटैक होने वाला है। भी हमारी भी तो जैसे हमारे, वी हैव एन इंडियन आर्मी, इंडियन वाली ऑलवेज एट दी वेयर, देर ऑलवेज ऑन दी बॉर्डर, ठीक है। और हमारे पास भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास भी सिग्नल्स हैं जो हमें बेसिकली क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं दैट वी गोइंग टू बी अटैक्ड, यस और नो। वी हैव सोर्सेज व्हिच टेल अस कि हम अटैक करने, हम पर कोई अटैक करने वाला है। सेम एग्जैक्टली प्लांट्स के आसपास भी जो ये सब्सटेंसेस हैं जब ये रिलीज होते हैं, सिग्नल देते हैं उस प्लांट को और नेबरिंग प्लांट्स को, भाई तुम पर जो है ना अटैक होने वाला है, नाउ यू बेसिकली गोइंग टू बी अटैक्ड बाय एनी काइंड ऑफ अ प्रीडेटर। Example, plants will start making antifungal or anti-insect toxins to protect themselves. अब प्लांट क्या करते हैं, तो मैंने बोला हर्बीवोर है, उसे अगर वो कुछ प्लांट खाएगा और उसे कुछ कड़वा कड़वा लगेगा तो वो क्या करेगा, खाएगा प्लांट को, नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, उसे नहीं खाएगा। और ये कब हुआ, जब उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म अपना एक्टिवेट किया और उन्होंने क्या किया, एंटी इंसेक्ट और एंटी फंगल जो है वो बेसिकली क्या यूज क्रिएट करना शुरू कर दिए, केमिकल क्रिएट करना, टॉक्सिन्स क्रिएट करना शुरू कर दिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? Yes, I hope this is clear to you. जैसे ये used as signal by fungal symbiont है, used as a cue by parasite है. So this is the correct answer. Okay? Next, attract beneficial organism. अब जो VOCs हैं बेसिकली जब ये रिलीज होती हैं फ्रॉम द रूट सेल टू अट्रैक्ट बेनिफिशियल फंगी और बैक्टीरिया। भाई अपना फायदा सबको पता है कि रूट्स में जब फंगी प्लस बैक्टीरिया होता है तो मैं बता दूं क्या होता है, N2 का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। तो ये क्या करती हैं, ये बेसिकली VOCs जो रिलीज होती हैं रूट सेल्स में तो ये अट्रैक्ट करती हैं किसको, फंगी और बैक्टीरिया को। फंगी अट्रैक्ट्स फंगी दैट हेल्प प्लांट्स रूट्स टू अब्सॉर्ब सॉइल न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली। फंगी क्या करता है, वो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत एसेंशियली क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करता है। फिर अट्रैक्ट करती हैं बैक्टीरिया को दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प द प्लांट टू ग्रो फास्टर। तो तुम लोगों को पता है फंगी जो है वो भी अब्सॉर्ब करता है बहुत तेजी से न्यूट्रिएंट्स, और बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर पाए ज्यादा तेजी से। क्लियर? तो दिस इज अबाउट दी बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली ये जो सिग्नल्स हैं, ये VOCs जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर द बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स फॉर देम। क्लियर? यस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ द प्लांट्स कम्युनिकेट। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि प्लांट्स जो हैं वो भी बातें करते हैं, प्लांट्स जो हैं अपने आप को बचाते हैं, डिफेंड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आस पास के प्लांट्स को भी कम्युनिकेट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे के काम जो हैं बेसिकली वो किसके हैं, प्लांट्स के हैं। ठीक है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, प्रेडेटर्स को बेसिकली रिमूव करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, तुम्हारे प्लांट्स के। आगे बढ़ते हैं। Let's basically end the session, children, and this is how we end the session. And as you know, this is the Imbibe platform. You can log in through your phone number and through your email ID, children. Yes, you can go to the homepage button, go to the Imbibe live classes. Yes, कोई बात नहीं, MB is not working, it's okay. ठीक है, go to the Imbibe live classes. You can basically register for the upcoming session so you never miss an update. You know how it is to be done. ठीक है, next basically we have a question for you before we end the session. Methyl jasmonate move through the air and non-damaged parts of the same and the neighboring plant. What is the correct answer for this one? Yes, methyl jasmonate move through the air to the non-damaged parts of the same and neighboring plants.
Absolutely true. Yes. साउंड सिग्नल्स जो हैं बेसिकली प्लांट से साउंड सिग्नल भी प्रोड्यूस होते हैं. प्लांट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. फॉर एग्जांपल, साउंड यूज्ड बाय द प्लांट्स टू कम्युनिकेट इंक्लूड रूट क्लिक्स एंड वाइब्रेशन. सो हाउ द रूट क्लिक्स वर्क? सम प्लांट्स सच एज कॉर्न, बीन्स आर known to produce clicking sounds in their roots. These clicks are thought to be caused by a sudden release of tension in the root tissue as the plant grows and can be detected by the near plants. तो भाई जो प्लांट के रूट्स हैं बेसिकली वो जो क्या करती हैं, वो एक वाइब्रेटरी क्लिक साउंड, रूट क्लिक्स बेसिकली जब वो टेंशन बहुत होता है रूट्स में, उसमें जो है वो बेसिकली क्लिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं. और ये क्लिक साउंड जो है वो बेसिकली आसपास के रूट्स को, आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स तक पहुंच जाती है और वो डिटेक्ट कर लेते हैं नियर बाय प्लांट्स. नेक्स्ट वी हैव वाइब्रेशंस. Plants can also produce vibrations in response to wind or environmental factors. These vibrations can be detected by nearby plants and may serve as a signal to prepare potential damage. So vibrations वगैरह के मेथड से भी जो है plants जो है अपने आप को prepare करता है ताकि उससे कोई basically potential damage ना हो. Next we have a question. Plants communicate through dash and dash. Through sounds and vibrations. Yes. Plants do communicate through this and this. So children, did you know? These are the few facts we should know. Based on the verbal language to communicate, instead they dance on the share information. Round dance. Yes, dance of an honeybee. Purpose to inform other bees nectar is within 10 meters. In this dance, the runs be in the small circles. Yes, what is a vagal dance? Purpose is to explain the distance and direction of desirability of nectar further than the 10 meters. In this dance, bee marks two semicircles and they run in a diameter of the circle. The straight side of the semicircle show direction. Yes, and the running speed show the distance and intensity towards the nectar, sweetness and quantity. So bees भी जो है वो एक दूसरे से communicate करती हैं कैसे? Dance करके, ठीक है? They share information through two things, through the round dance. Yes, अगर नेक्टर का डिस्टेंस 10 मीटर से कम है तो वो राउंड डांस करती हैं, और नेक्टर जो है अगर वो थोड़ा 10 मीटर से ज़्यादा अवेलेबल है और दूर है थोड़ा सा, तो उसका डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो बेसिकली वो वैगल डांस के थ्रू बताती हैं. सो दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दी बी कम्युनिकेशन. Yes, moving on to the next we have end our session children. This is the Imbibe app. Children, we have already talked about it. This is the Telegram channel. You can just join us on the Telegram channel. You can scan this barcode so that you never miss an update children. I hope that particular session was useful to you क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से तुम लोगों को explain किया है that how do plants communicate. Until then, please take care, keep imbibing. Bye bye children, and please do join us on the Imbibe app. Download the Imbibe app, Imbibe Lens app. These are one such amazing apps which can help you a lot achieving a lot of information from one platform. Yes, until then, please take care, keep imbibing. Bye bye. Keep imbibing. We believe in you.